ایک مسلمان کے پاس جو مال ہوتا ہے یہ مال اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. ایک مسلمان کا حق نہیں بنتا ہے یا اپنی من چاہی اپنی مرضی سے مال کو جہاں چاہے خرچ کرے جہاں چاہے ملائے نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ میں جہاں سے مال کما رہا ہوں کیا یہ حلال طریقہ ہے یا حرام ہے، اور جہاں میں استعمال کر رہا ہوں کیا شریعت نے مجھے اجازت دی یا. حدیث کے اندر موجود ہے کہ محشر کے دن انسان کے قدم آگے نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اسے کچھ سوالات کیے جائیں گے. ان میں سے ہے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، مال کہاں سے اور کہاں خرچ کیا، یعنی کمانے کے ذریعے جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دیگر عبادات کو انجام دے رہا ہے، وہاں اس کو یہ سمجھنا ہے کہ جو میں مال کما رہا ہوں جس کی بدولت میں بڑا مالدار بن رہا ہوں، یہ مال کمانے کے جو سورسز ہے، انکم جو جہاں آتی ہے وہ آنے کے جو جگہیں ہیں، سورسز ہے، ذرائع ہے، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر حرام ہے ایسے شخص کو اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے اس انسان کو اس مسلمان کو اس طریقے سے بچنا ہے. رب نے قرآن میں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، آپ کو کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ پیسہ بنا رہے ہو آپ کھا رہے ہو، آپ کو کھلانے والا میں ہوں، آپ کو کھلانے والا. اگر آپ کا ایک راستہ بند ہو رہا ہے جہاں سے آپ کو 70,000 80,000 انکم آمدنی ہے لیکن غلط راستہ ہے، غلط طریقہ ہے، سودی لین دین ہے، یا اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ نے وہ چھوڑ دیا، جہاں سے آپ نے راستہ چھوڑا اور اللہ پر آپ نے بھروسہ کیا، توکل کیا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی راستوں سے رزق دوں گا کہ آپ کے وہم و گمان میں، چاہے پھر دوسری جگہ آپ کو 40,000 کی آمدنی ہو لیکن وہ 40,000 آپ کے لیے بابرکت آمدنی ہو. ٹھیک اسی طریقے سے یہ مال جہاں سے ہم نے کمایا اگر کمانے کے ذریعے حلال طریقہ ہے مبارک ہے ایسے مسلمان کو، لیکن اس کے بعد کمال ہے اس مال کو خرچ کرنا. ایک انسان کے پاس جب مال آتا ہے پیسہ آتا ہے پھر یہ بے تحاشا اس کو خرچ کرتا ہے، حالانکہ وہاں پر بھی شریعت نے اجازت دی، شریعت نے تعلیم دی. ایک مسلمان کو مال خرچانے میں بھی میانہ روی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اعتدال طریقہ. یہ زیادہ فضول خرچی نہ کرے، یہ اسراف نہ کرے، اور مال وہیں پر خرچ کرے جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کی تعلیم. چنانچہ ایک مالدار شخص پر ذمہ داری بنتی ہے یہ اپنا مال ان جگہوں پر خرچ کرے جہاں کے لیے اللہ نے پہلے سے حکم دیا ہے. اگر مالدار ہیں اس پر زکوٰۃ ہر سال مال سے دینی ہوتی ہے، وقت جب آتا ہے زکوٰۃ دینے کا ایک مسلمان کو پھر اجازت اختیار نہیں ہے کہ وہ مال میں سے زکوٰۃ کو بند کرے، کیونکہ اب اس کو حکم دیا گیا اس مال میں سے زکوٰۃ خرچ کرنا ہے جہاں اس کا مصرف ہے جس کو یہ دینا ہے. اور قرآن اس کی بڑی وضاحت کی 8 مصرف سے 8 جگہیں ہیں جہاں آپ اس مال کی زکوٰۃ کو نکال سکتے ہیں. اس کے بعد اس مال میں سے ایک حق بنتا ہے ایک انسان اتنی زیادہ کنجوسی کا بھی معاملہ نہ کرے کہ بالکل یہ انسان دوسروں کا ایسا نظر آئے کہ جیسے کہ بالکل فقیر اور مسکین ہے.
एक हदीस में बयान किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असरा निअमतिही अला अब्दिही। अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि एक इंसान पर उसकी नियामतों का उसके जिस्म पर असरात हो। यानी एक मालदार शख्स, एक माल वाला, ये माल कुछ अपने जिस्म पर भी खर्च करे। अगर इसके पास वुसात है, या अपने अच्छे से कपड़े पहने, या अपने पास गाड़ी रख सकता है, या अपने पास नौकर चाकर रख सकता है, ताकि ये सारी चीजें करने से नियामतों का इजहार करे। अल्लाह आपने मुझे बड़ा मालदार बनाया। अभी नियामतों का इजहार एक तरीका भी है कि मैं इसको इस्तेमाल करूं। चुनाच अगर ये कपड़े पहनेगा, नए नए कपड़े, या अपने पास हर एक सहूलत की चीजें रखेगा, शरीयत ने इसे मना नहीं किया। लेकिन एक बुखारी शरीफ की रिवायत है, इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान की अलामत में से एक अलामत। मुसलमान जो भी पहने, जैसी भी गाड़ी रखे, कैसी प्रॉपर्टी बनाए हलाल तरीके से, लेकिन सादगी होनी चाहिए। सादगी से मुराद इसको तकब्बुर नहीं करना चाहिए। क्यों? इसको ये नियामतें अल्लाह ने अता की है, ये नियामतें अल्लाह ने जब इसको दी हैं, इसको समझना है अल्लाह ने जब मुझे माल दिया, अल्लाह ताला की जात इस पर ताकत रखती है, वो बड़ा कादिर है इस बात पर कि ये माल मुझसे वापस ले सकता है। इसलिए एक मुसलमान को ये मुनासिब नहीं है वो नियामतों में हो, मालदार हो, पैसा वाला हो, फिर दूसरों को नीची निगाहों से देखे, उसको हकीर समझे, उसको अपने से कमतर समझे। बल्कि हमेशा इंसान को, खुसूसन मालदार इंसान को, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं बारहा कहता हूं, सहाबा में ये नमूना भी है, जिन सहाबा को हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी, वो बड़े 10 सहाबा थे। कितने? 10 सहाबी। उनमें से एक सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो बहुत बड़े सहाबी, मालदार सहाबा में से गुजरे हैं। लेकिन नदामत, आजिजी इनकी सारी इतनी थी, खौफ खुदा इतना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशरुम मिनल जन्नह अशरुम मुबश्शरतुन। 10 सहाबी मेरी सहाबा में से 10 सहाबी ऐसे हैं जिनको मैं दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे रहा हूं, जन्नती होने की। और उनमें से एक मालदार सहाबी भी है अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला। इसलिए जो कहा जाता है कि मालदार जो बन गया, शायद इसको अल्लाह ने दुनिया में नियामत दी है, अब जन्नत का कोई हक इसको नहीं है। हाँ, ये जन्नत का हक खुद छीन सकता है अपने बदआमाली की वजह से, अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल करने की वजह से। चुनांचे उमूमन आज के इस दौर में जहां मादियात पर ज्यादा दौर फोकस दिया जा रहा है, जहां तरजीह दी जाती है माल कमाने में, चुनांचे आपने देखा है जो गरीब इंसान होता है वो अल्लाह के बारगाह में आता है, उसके पास नदामत होती है, वो मस्जिद आबाद करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक मालदार इंसान है, इसमें गरीबों के मुकाबले में ज्यादा वो निकलते हैं जो अल्लाह की इबादत फरामोश करते हैं, जिनको फिर नमाज याद नहीं रहती है, जिनको फिर गरीब याद नहीं रहता है, जिनको फिर यह एहसास भी नहीं होता है कि जब मैं रास्ते से चलो, मुझ पर जिम्मेदारी बनी है, मैं एक इंसान को सलाम करूं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, लेकिन अपने माल में मगन होता है, अमीराना जिंदगी में मगन होता है। ये सामने जब गरीब को देखता है, इसको बड़ी हकारत मालूम होती है कि मैं इसको क्या सलाम करूं। तो ऐसा शख्स जन्नत अपने हाथ से छीन रहा है। नहीं तो एक मालदार इंसान जिसको रब ने दुनिया में माल दिया, उसको 2 काम करने हैं। एक काम, माल कमाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और उस माल में किन के हुकूक है, किसका हक है, अपने माल में से उसका हक अदा करना है। और दूसरी बात, कमाने के बाद
हमेशा अल्लाह के सामने हाथ जोड़कर बैठे, अल्लाह आपने मुझे माल दिया है, आपने मुझे मालदार भी बनाया, ऐसा तो न हो कि आपने शायद जन्नत की नियामतें मुझे दुनिया में दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी दस्तरखान पे होते थे, गरीबों को बुलाते थे, खिलाते थे, लेकिन जो खिलाने खाने का टाइम होता था तो अपना हाथ खींच लेते, रो रहे थे अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह भाई ऐसा तो न हो कि आपने जन्नत की नियामतें मुझे दुनिया में दी। ये सोच कर वो खाना वहीं छोड़ते थे, गुरबा में, गरीबों में, मिस्किन में वो पूरा खाना तकसीम करते थे। ये नदामत थी। और जहां भी इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी है माल खर्च करने की, इन बड़े सहाबा ने, मालदारों ने कभी भी बुखल नहीं किया, कभी भी कंजूसी नहीं की। हुजूर ने जब इमदाद की सदा लगाई कि इस्लाम को जरूरत है माल की, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला मालदार साहबी अपना माल लेकर आते हैं, और बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मालदार साहबी अपना माल लेकर आते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु मालदार शख्स अपना माल लेकर आते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान अगरचे दुनिया में सबसे बड़ा मालदार है, लेकिन रब ने इतना खौफ दिया, इतनी मारिफत उसको अल्लाह की, ये माल उसको अल्लाह की मारिफत से दूर नहीं कर सकता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान अगरचे मालदार है लेकिन रब की इबादत कर रहा है, हुकूक अदा कर रहा है, ए उस्मान आप भी जन्नती हो। अबू बकर आपने सारा माल दीन के लिए खर्च किया है, मैं आपको अपनी जबान से बशारत दे रहा हूं, आप भी जन्नती। इसलिए जो मालदार हजरात हैं आज के दौर में, उन पर भी जिम्मेदारी है वो तरीका इख्तियार करे हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन्होंने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च। अबू जहल का रवैया इख्तियार नहीं करना है, जिसके बाद रब ने फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ माला वाल, तबाही बर्बाद है उन शख्सों के लिए जो माल जमा करते हैं और फिर गिनते हैं। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, ये समझते हैं माल हमेशा हमें हमेशा दुनिया में रखेंगे। कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा, रब ने कहा हरगिज एक दिन आपको दुनिया से निकलना है, हम आपको पकड़ेंगे हुतमा में, उसमें वो नार होगी झुलसने वाली होगी जो इंसान के दिलों तक पहुंचेगी, अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा, इंसान के दिमाग को भी मुतासर करेगा। वहां के आग की सतून के साथ मालदार झकड़े होंगे जहन्नम में, जिन्हें दुनिया में माल का हक अदा नहीं किया है। अब हमें दो रास्ते हैं, रब ने हमारे पास अमानत दी है, हम मुख्तार हैं, हम माल खर्च गलत भी कर सकते हैं और सही रास्ते पे भी खर्च कर सकते हैं। हम नमाज भी पढ़ सकते हैं और नमाज को छोड़ने वाले बन सकते हैं। हम रब की फरमाबरदारी भी कर सकते हैं और रब की नाफरमानी भी कर सकते हैं। लेकिन रब ने कहा, सुन लीजिए ए मेरे बंदे, अगर आपने मेरा माना, मेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका माना, फिर आपको दुनिया में भी हयात तय्यबा है, पाकीज़ा जिंदगी है, और आखिरत में आपको लिए मेरी रजामंदी है, और रजामंदी की जगह जन्नत है। और अगर आपने मेरी नाफरमानी की, रोगर्दानी की, हुजूर के तरीके को छोड़ दिया है, फिर सुन देना, दुनिया में भी आपकी जिंदगी सुकून वाली नहीं होगी, बेइत्मीनान वाली जिंदगी होगी, और आखिरत में मेरी नाराजगी आप पर जारी होगी, और नाराजगी की जगह जहन्नम होगी, फिर आपको जहन्नम में झुलसना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें सही तरीके पर चलने की तौफीक अता करे, और जो अल्लाह ने हमें अमानत दी है, मुकल्लफ बनाया, अल्लाह ताला हमें सही माने में बंदगी करने की तौफीक अता करे, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे खताओं को माफ करे।